Hello everyone, I'm Sonu Sen. Today let us start marketing management subject which is useful for both commerce and management. Let's get started. What is the meaning of market here? Market means here market is derived from Latin word which is means marketers, which means to trade or a place where goods are purchased and sold. Here it means a place where goods are purchased and sold. But now in a modern term it's not a place, it's also a without a place also a goods can be purchased and be sold in an online mode. Okay, right. Next we'll see what is the meaning of marketing here. Marketing is the delivery of customer satisfaction at a profit. In marketing, we deliver not only the goods but also we deliver the satisfaction to the customer at a profit rate. So, according to the Kotler, a social and managerial process whereby individual and group obtain what they need and want through creating exchange products and value with the others. Here, Kotler says that it's a managerial and social process where a single person or a group of a person obtain what they need by creating the demand for the goods and with the value for the exchange of the value of the goods. So I hope you have cleared the meaning of marketing here. Let's see next. What is marketed? So what we can market here? We can market goods like it may be car, laptop, right? Then services, maybe doctor gives services, right? Next, events like concerts, any concerts can be marketed. Experience, you can see water park, right? Water park we can experience, we can share our experience. Persons, you can see ambassador will be a a person who will be selling the products like, right? You can see in the like Sachin, he's showing about one product. He's ambassador of like Horlicks, and also you can see there a place, you can see here a place like Gujarat tourism, right? You have seen those type of videos where Amitabh Bachchan is a ambassador of that, and he's marketing the place of Gujarat for tourism, right? Next, properties, you can see the properties which is marketed in the social media, in the papers and all. Information, you can see like COVID information. At the COVID time, government had given information in both in the offline mode to the citizens of India. Ideas we can market like startups and all. Organization we can market like NGOs, any institution who are great doing their business and all those type of organization we can market. So these are the list which we can market. Okay, so let's see the next one. What is the meaning of market and management here? Here market means, you can see, wait a second, market means nowadays it's a actual potential buyers, right? Here potential buyers. Here market means a actual potential buyer who really want to buy the goods. So here marketing means where the customers demand for the goods, demand for where the customer demand for the goods and get the products, right? That is the marketing, where what the customers are needed, that the company analyzes and then the products are produced. Next, what is marketing here? Wait a second. Here marketing means marketing management. Here it involves starting to end process where planning involves, then organizing, right? Next, directing, staffing, control, these all involves in the product from starting to end, from the execution to the end part, to the customer service part. Till then the marketing management control everything. So this is the meaning of marketing management. Okay,
Next, see what is the meaning of selling and marketing. Selling here, it's a place of buying and selling goods. Selling takes place. It's a place where buying and selling takes place. Just a buying and selling takes place. Whereas for marketing is a process. It involves a process. Huge. मतलब it's a like long term process where creating utility. Not only it sells the goods to the customers, but also create utility of that product. Next, it is focus on sales. It focus on customer needs here. Only customer needs is most important for the marketing. It is inside and outside concept. How it is means a company manufacture goods according to him, and then he sell to the customers. But here in marketing, outside inside concept means company first analyze the market and what is the demand of the customers, those he analyze, then he produce those type of goods. So it is outside and inside concept. Essence is a transfer title of possession. Here selling is the main essence is to just to transfer the title and possession goods and transfer the goods to the customer. But here in the marketing, essence is to satisfy the customer. Not only selling the goods, but customers should satisfy of buying those product, so that they come back to the to the a seller, right? Here short term, it is very short term period. Here long term, here the marketing retain the customer for a long period of time. Here it's a volume oriented. The main aim of selling is just to sell more, but here profit oriented. Marketing involves a basic condition that customer should satisfy and at a profit rate, right? Next, heavy selling and promotion. Here sellings involves heavy promotions and all, but marketing involves integrated marketing. Here every sectors work for it. Trade between parties. Here just a trade between buyer and a seller, but it's a link between customer and the company. I hope you have clear the meaning of selling and marketing here. Next, let's see core concept of marketing. What is the core concept of marketing? Marketing here, core concept first is need, the basic requirement for the human being to survive. Like you have seen, स्टार्टिंग हमें कुछ करना है तो जैसे हमारी अभी देख लो, आपने जैसे पढ़ाई कर ली, आपका एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया, ओके, अब आपको जॉब करना है, जॉब मिल गई आपको, तो आप जब आपको सैलरी मिलेगी आप क्या करोगे, बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना शुरू करोगे. आप मान लो कि आपकी सैलरी लाइक 20,000 है, तो उसमें से आप पहले क्या करोगे, बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे फूड, शेल्टर, राइट, वो हम देखेंगे कि हमें टाइम पे खाना मिल रहा है क्या, हमें रहने के लिए जगह मिल रही है क्या, लाइक दैट विल सी. वो जब नीड हमें सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर हम किस में शिफ्ट हो जाएंगे, वांट में शिफ्ट हो जाएंगे. फिर हम सोचेंगे कि भाई हाँ, हमें बेसिक नीड तो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई, बट नेक्स्ट वांट, मेरे को ऑफिस जाने के लिए कार चाहिए या फिर बाइक चाहिए नॉर्मल वैसे, ठीक है, तो वो एक वांट हो गया हमें, तो वो वांट फुलफ़िल करने के लिए हम जुड़ जाएंगे जैसे, ठीक है. तो उसमें से जो नीड के बाद जो पैसा बचेगा उसमें हम वांट में हम लोग खर्च करेंगे, राइट. सो उसमें अगर वांट में हम लोगों ने खर्च कर लिया, फिर हम लोग किस में जाएंगे, डिमांड में. आफ्टर डिमांड, हाउ डिमांड अकर्स व्हेन बैक्ड अप बाय द बाइंग पावर, वॉन्ट बिकम अ डिमांड. हियर वॉन्ट, हाउ वॉन्ट बिकम डिमांड, मतलब जब डिमांड, नीड और वॉन्ट की पूरी फुलफिल हो जाएगी तब डिमांड में हम आएंगे, लाइक ओनिंग BMW कार एंड ऑल, राइट. सो जब नीड वॉन्ट हमें सक्सेसफुली मिल रहा है, जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है, तब हम लोग डिमांड पे आ जाएंगे. तो हम डिमांड करेंगे कि भाई हाँ, शायद हमारे पास ये कार होती तो हम ले लेते. तो ये कार जब वो BMW आ जाती है मार्केट में, हम वेल एडवर्स होते हैं कि भाई हम परचेज कर सकते हैं, लाइक वी कैन अफोर्ड देम. सो हियर दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग. आई होप you have cleared the meaning of need, want and demand here. Next we'll see marketing concept. What are the marketing concept? Here marketing concept first comes production concept, product concept, selling concept, marketing, social marketing. अभी एक और आया, it is holistic marketing, right? Okay, we'll see next. What is production concept? Here production concept, इट इज़ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट. ये एक स्टोरी फॉर्म में मैं बताती हूँ आपको, पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको स्टोरी फॉर्म में बताती हूँ. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. इट बिलीव्स दैट कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल. वो लोग क्या सोचते थे उस टाइम पे कि
जो कंज्यूमर मतलब हम जो प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा जो प्रोड्यूस करेंगे कस्टमर उसी चीज़ों को बाई करेंगे. आइडिया ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हियर, कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर हाईली अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल. जो चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, जो चीज़ें हाईली अफोर्डेबल होगी, जो ईजिली मिल जाएगी और कम पैसे में मिल जाएगी, वो चीज़ें कस्टमर्स लेना चालू कर देंगे. तो उनका प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट का टाइम पे ये सब का सेलर्स का दिमाग उस टाइम ऐसे चलता था. ओके, नेक्स्ट विल सी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. इसके बाद क्या आया? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. व्हाट हैपेंड? द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज स्लाइटली मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ प्रोडक्शन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में. हियर मेजर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस एंड फीचर्स. फीचर कैसा है प्रोडक्ट का, परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर लाइक 1 ईयर गारंटी है या नहीं, या फिर बीच में अटक जाएगा तो नहीं प्रोडक्ट्स. ऐसे इफ़ यू टेक एनी प्रोडक्ट लाइक इलेक्ट्रिकल, any remote control car, anything like that. So quality of the product, here main importance is given to quality of the product. quality कैसा है? It believes that, यहाँ पे क्या believe करते थे? consumers respond to good quality products that are reasonable price. तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या सोच रहा है कि भाई कंज्यूमर्स को वैसा प्रोडक्ट चाहिए जो क्वालिटी, विच इज़ द क्वालिटी इज़ वेरी गुड, सो दैट कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाई दोज प्रोडक्ट्स ऑल्सो. तो यहाँ पे वो उस टाइम पे ये दिमाग चलता था उनका सेलर्स का. नेक्स्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट. दिस कॉन्सेप्ट इवॉल्व आउट ऑफ फेल्यूर ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट में उस टाइम पे क्या आया? फिर ये जब प्रोडक्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फेल हुए तब सेलिंग कॉन्सेप्ट आया. इट इज़ बेस्ड ऑन आइडिया दैट पीपल विल बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज इफ अग्रेसिव सेलिंग्स मेथड आर मेड. Here what they thought is, people will buy more goods and services if they promote their goods so much. मतलब if they promote their products as much as possible to the people, the product will automatically will sell. It believes that people ordinarily will not buy the organization's product unless they are persuaded to buy. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग उस टाइम ये सोचते थे कि भाई जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे सेल हो रहा है, तब तक वो कोई भी प्रोडक्ट के बारे में ना तो जान पाएंगे ना कुछ. हम जब तक हम बताएंगे नहीं तो लोग खरीदेंगे कैसे, राइट? तो वैसे ही हम प्रमोशन, जैसे जैसे प्रोडक्ट का हम प्रमोशन करेंगे वैसे हमारी अपने आप सेलिंग हो जाएगी. ये आपने देखा होगा, एक एग्ज़ाम्पल होगा जो फेमस एग्ज़ाम्पल है, जो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में आता है कि भाई जो गंजा होता है उनको भी हम लोग कंगी बेच देना. तो वो वाला कॉन्सेप्ट इसमें आता है. नेक्स्ट विल सी मार्केट कॉन्सेप्ट. तो आपने अभी क्या देखा? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट देख लिया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट देख लिया, सेलिंग कॉन्सेप्ट. ये तीनों क्या हुआ यहाँ पे? सिर्फ सेलिंग जो चाहेगा, सेलर जो चाहेगा वो होगा यहाँ पे. सेलर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट एट दैट टाइम. बट नाउ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अराइजेज हियर. सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन नोशन दैट मेन टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू नो द नीड्स, वांट्स, वैल्यू ऑफ द टारगेट मार्केट. यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई कस्टमर्स की नीड क्या है, वांट क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या ट्रेंड है इस टाइम पे, वैसा वो एनालाइज करके फिर वो अपना यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए. इसलिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमेशा आउटसाइड एंड इनसाइड कॉन्सेप्ट आएगा. हियर कस्टमर्स आर किंग ऑफ द मार्केट. यहाँ पे कौन किंग ऑफ द मार्केट है? कस्टमर्स है. यहाँ पे जो कस्टमर चाहेगा वो ही यहाँ पे होगा. ठीक है. द की ऑफ द अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज टू बीइंग मोर इफेक्टिव. यहाँ पे की क्या है? उनको बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छे से उनका प्रोडक्ट इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए कॉम्पिटिटर्स से अलावा, टुवर्ड्स डिटरमाइनिंग सैटिस्फाइंग नीड वांट ऑफ टारगेट मार्केट. यहाँ पे जो उन्होंने टारगेट कर रखा है मार्केट को कि भाई जैसे उन्होंने किड्स को टारगेट कर रखा है, वह ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे कि भाई देखते ही वो किड्स अट्रैक्ट हो जाएंगे उनके प्रोडक्ट को देख के, राइट? सो उनके नीड एंड डिमांड सब फुलफिल हो जाएंगे उस प्रोडक्ट से. तो वैसे प्रोडक्ट्स मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस करता है. आई होप यू हैव क्लियर द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हियर. नेक्स्ट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्टिंग. तो हियर व्हाट इन्वॉल्व्स दिस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स आउट ऑफ मूवमेंट ऑफ कंज्यूमरिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म. तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता था? सिर्फ कॉन्सेप्ट कंज्यूमर पे ही फोकस करता था, राइट? वो मार्केट. बट फिर क्या हुआ? नुकसान होने लग गया एनवायरनमेंट में, राइट? सो सोसाइटल मार्केट आया जहाँ पे कंज्यूमर के साथ साथ वो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखे. इट बिलीव्स दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिलीवर
द सुपीरियर प्रोडक्ट टू द मार्केट दैट मेंटेन कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी वेल बीइंग। बोथ कंज्यूमर एंड सोसाइटीज़ का ध्यान रखे कि भाई किसी को भी हार्म ना करे, वैसी चीज़ें वो प्रोड्यूस करें। इट बैलेंस बिटवीन बोथ द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, कंज्यूमर एंड द सोसाइटी। सो इससे क्या होता था, एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता था और इवन कंज्यूमर्स के डिमांड भी फुलफिल होता था। तो CSR, यू हैव हर्ड अबाउट दैट CSR, राइट। तो यहाँ पे कंज्यूमर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो लोग क्या करते थे यहाँ पे, इवन एक कंपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो CSR में डेवलप करते थे। जैसे कोई डिसेबल पीपल्स के लिए वो टॉयलेट्स बना लेना हो, या फिर कोई रेन हार्वेस्टिंग, जैसे कोई बड़ी जगह लेके सिटी में वहाँ पे कुछ करवाना हो, इवन लाइक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ करवाना हो, पार्क डेवलप्स करना हो, तो ऐसे वो लोग कंपनीज CSR में इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट विल सी होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज़ द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू कोटलर होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम, प्रोसेस, एक्टिविटीज दैट रिकॉग्नाइज देयर ब्रेथ एंड इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे पूरा वो ध्यान रखते थे कि भाई बोथ मार्केटिंग एंड सोशलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो सोशलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था वो दोनों कंबाइंड होकर यहाँ पे होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं उनको। यहाँ पे दिस इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट। बोथ यहाँ पे मार्केट का भी ध्यान रखते थे कि भाई कैसे कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स चाहिए, और इवन सोसाइटी का भी ध्यान रखते थे कि कोई किसी का हार्म नहीं हो यहाँ पे। ठीक है, आई होप यू हैव क्लियर द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग हियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायमेंशंस क्या क्या है होलिस्टिक मार्केटिंग में। तो यहाँ पे इंटरनल मार्केटिंग आता है। इंटरनल मार्केटिंग कंपनी के अंदर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, सीनियर मैनेजमेंट हो, अदर डिपार्टमेंट, जैसे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आते हैं वो वर्क करते हैं। फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में कम्युनिकेशन हो, कैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करेंगे, प्रोडक्ट सर्विसेज कैसे, किस तरह के प्रोडक्ट या सर्विस हम दे रहे हैं, किसके थ्रू हम लोग अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, चैनल्स बोलते हैं। नेक्स्ट सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, यहाँ पे सोशल एथिक्स, हम लोग एथिक्स फॉलो करें अपने कंपनी में, अपने प्रोडक्ट्स में, एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन का ध्यान रखें, कम्युनिटी का ध्यान रखें। जैसे कोई कम्युनिटी को हम लोग हार्म ना करें, हमारी प्रोडक्ट किसी की चीज़ की कम्युनिटी को हार्म ना करें, उनको हर्ट ना करें कोई कम्युनिटी ऑफ पीपल को, तो उस सबका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप मार्केटिंग में कस्टमर्स का ध्यान रखना है, चैनल का ध्यान रखना है, पार्टनर्स जो अपने कंपनी में या फिर अपने बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं उनका ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप यू हैव क्लियर द मीनिंग ऑफ हियर होलिस्टिक मार्केटिंग डायमेंशन। इन सब को मिला के होलिस्टिक मार्केटिंग हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू, हम लोग अपना कस्टमर्स को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, विल सी हियर। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, हम लोग क्या देखेंगे जब हम लोग प्रोडक्ट सेल करते होंगे तो हम क्या एम करेंगे, व्हाट विल एम, वी एम हाई इन बिल्डिंग CRM मीन्स हियर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट। सो वी हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप विद द कस्टमर फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कस्टमर्स कैन बी हाई लो प्रॉफिटेबल, sometimes customers give very low profitable, sometimes it's give very high profitable, sometimes short term or long term oriented. When putting these two in a matrix we can have 4 terms of appearance। यहाँ पे हम लोग जब कस्टमर्स को 4 तरह के कस्टमर्स को हम ध्यान देख सकते हैं। यहाँ पे बटरफ्लाइज क्या होता है, बटरफ्लाइज वो होता है जो प्रॉफिट तो होता है, वो प्रॉफिट देते हैं हमें बट लॉयल नहीं होते। यू हैव सीन बटरफ्लाइज फ्लाइंग इधर हियर एंड देयर, राइट। सो here butterflies what they give high profit at that time but they are not loyal and not loyal to their product, right. Next the true friends are both profitable and loyal, they are loyal to their company and both they are even profitable also. Firm should invest in the continuous relations, here the company should invest these types of customer. What is barnacles, are loyal but unprofitable, these are the barnacles are the loyal, वो loyal से रहते but profit कुछ नहीं देते, it not improved, get rid of them, if they are not any purchasing then company should avoid them and get rid of them. Next strangers are not loyal and unprofitable, ये जो strangers होते हैं ना कुछ लेते हैं ना कुछ loyal भी है, just they come and see, the company should not invest in them, company इन लोगों के बीच में invest नहीं करना। तो company किस में invest करना है, true friends में invest करना है। ठीक है, तो हम लोग इसका एक चार्ट बना के मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, 1 सेकेंड, ईजी चार्ट है।
I'll show here, okay? So see, प्रॉफिट भी है और लॉयल भी, ठीक है? ये दोनों जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी देते हैं और लॉयल भी है, वो ट्रू फ्रेंड्स है, राइट? ट्रू फ्रेंड्स बोलेंगे उनको। और एक जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट देते हैं बट लॉयल नहीं है, वो कौन होते हैं? वो बटरफ्लाइज होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, जो प्रॉफिट तो देते हैं, नहीं सॉरी, जो प्रॉफिट नहीं देते और लॉयल भी नहीं है, वो कौन होंगे? स्ट्रेंजर्स होंगे। और एक कौन बचा? बर्नैकल्स। बर्नैकल्स क्या होते हैं? जो लॉयल तो होते हैं बट प्रॉफिट नहीं देते, है ना? आई होप यू हैव क्लियर दिस स्टार्ट क्लियरली। बर्नैकल्स कौन होते हैं? जो प्रॉफिट नहीं देते बट लॉयल होते हैं। स्ट्रेंजर्स क्या होते हैं? जो दोनों प्रॉफिट भी नहीं देते, लॉयल भी नहीं होते। और बेस्ट फ्रेंड्स कौन से होंगे? ट्रू फ्रेंड्स दोनों प्रॉफिट भी होंगे और लॉयल भी होंगे। और प्रॉफिट देंगे बट लॉयल नहीं होंगे, वो कौन से होंगे? वो बटरफ्लाइज होंगे, राइट? सो आई होप यू हैव क्लियर दिस स्टार्ट क्लियरली, ओके? इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको चार्ट में समझ में आ गया। सो आई होप यू हैव क्लियर द मीनिंग ऑफ दीज ऑल वॉट वी हैव थॉट टुडे, ओके? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है? वो सब समझ में आगे हो गया, मीनिंग समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट विल सी in the next class. So I hope you have cleared everything. If you have any doubt, do comment me on the comment section box and do subscribe my channel. Okay, thank you.